morning, dear learners. Welcome to the online classes of Shri Ram Public School. And today in your class, we are going to start new chapter from your class 9 book, India and the Contemporary World, Past First. Before starting this new chapter, let me introduce you all with myself. I am Soumya ma'am, your teacher at SRPS. So dear students, as you know that already we have discussed the first chapter of your class 9 textbook following the CBSE guidelines. That was chapter number 1, French Revolution. Yes, we discussed many things about it in detail. Now our next chapter that we are going to start is chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. So dear students, as you know, before starting of any chapter, I discuss with you all the name of the chapter in detail so that you can get a general idea that what you are going to study in the chapter. So this is our introductory video of class 9, number 2, lecture number 1. So as we are seeing, it is written here, Socialism in Europe and the Russian Revolution. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसका नाम था सोशलिज्म में कब और कैसे आया और क्यों इसका नाम सोशलिज्म था, जिसका कि दूसरा नाम कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है या कम्युनिज्म भी होता है। इसका कैसे बिगनिंग हुआ यूरोप में, इसकी क्या हिस्ट्री थी और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा उस समय 19th सेंचुरी के यूरोप में, और एज वेल एज इसका इम्पैक्ट क्या है प्रेजेंट टाइम में। और तो और रशिया में कैसे रेवोल्यूशन आया, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, वैसे ही रशिया में क्या रेवोल्यूशन आया, उसके पीछे कौन लोग थे, क्या रीजंस थे और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में उस वक्त हिस्ट्री में क्या पड़ा और उसका आफ्टर इफेक्ट प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या है। दिस ऑल विल डिस्कस इन आवर चैप्टर। स्टार्टिंग दिस चैप्टर, लेट अस go through a glimpse of the French Revolution, that what important points we studied under that and that are useful in our this chapter. As in French Revolution, we studied the society were divided into 3 states and the third state demanded for its right under the leadership of various great minds like Montesquieu, Jacques Rousseau and others. Society was now divided on the basis of their thinking on the 3 classes that were: first one liberals, second radicals and third conservatives. Now we will study each head in a little detail for your clear understanding. There were people who followed the change in society and tolerated all the religions. Either it can be the Catholic Christian or as well as the Protestant Christian. It only opposed one thing, that control power of dynasty rulers. मतलब कि liberals मानते थे कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा। They thoroughly opposed the dynastic rules and followed the constitution और parliamentary form of government, जिसमें कि leaders को लोग खुद ही इलेक्ट किया करते थे और जहाँ का रूल एंड रेगुलेशन, लॉ और कोड को अबाइड होता था। पर लिबरल्स और डेमोक्रेट में फ़र्क होता था। डेमोक्रेट्स के बारे में हम जानते हैं, जैसे हमारी कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे इस गवर्नमेंट को फॉलो करने वाले हमारे लोग क्या कहलाते हैं, डेमोक्रेट्स। सो लिबरल और डेमोक्रेट्स में अभी भी एक अंतर था। लिबरल्स पूरी तरीके से डेमोक्रेट्स नहीं थे, हालांकि वो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस चाहते थे। तो इसका डिफरेंस का मेन पॉइंट क्या था कि डेमोक्रेट जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बिलीव करते थे। ये मानते थे कि हर किसी के पास वोट का अधिकार होना चाहिए अबव अ सर्टेन एज, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसके पास पैसा हो या पैसा ना हो। बट लिबरल्स इस बात से सहमत नहीं थे। लिबरल्स ये चाहते थे कि वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन को हो। जैसा लिबरल्स डिडंट इवन सपोर्टेड वुमेन सफ्रेजिटी, मीन्स दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ वुमेन्स राइट टू vote. So these were views of the liberals. Now moving forward, see about the radicals.
where the revolutionaries which belong to the majority of country's population, मतलब कि कंट्री की पॉपुलेशन में अब जो न्यू जनरेशन आ रही थी, यंगर जनरेशन आ रही थी, उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो रेडिकल थिंकिंग को अपनाते थे। और उनके क्या क्या एस्पेक्ट्स थे, उनकी क्या क्या थिंकिंग थी, हम इसके बारे में देखते हैं। रेडिकल्स जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स के अगेंस्ट हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि सारा पैसा, कंट्री का सारा रिसोर्सेज जो है वो किसी सिंगल पर्सन के हाथों में कंसंट्रेटेड हो। रेडिकल्स वुमेन सफ्रेजिटी को सपोर्ट करते थे और वो इस बात के फेवर में थे कि हर कंट्री में हर किसी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिलना चाहिए, मतलब कि किसी को भी वोट के अधिकार से, अगर उसकी लीगल एज है तो उसे वंचित नहीं रखा जा सकता है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने लिबरल्स के बारे में डिस्कस किया कि वो जो है वो उनकी थिंकिंग कंजर्वेटिव से अलग हुआ करती थी। वो चाहते थे कि जो एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो कंट्री में, ना कि पावर किसी फ्यू के हैंड में। पीपल जो है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें और जिसका जो रूल है कंट्री में वो किस पे बेस्ड हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन और judiciary form of government पे based on. This was one point about the liberals. Then the second point about the liberals where they were different from democrats, means they do not believe in universal adult franchise, means they were not in favor for women for right to vote. Then we came over to radicals. What we learned about the radicals, they belong to the majority of a country's population, first point. Then second point, they were against the ownership of private properties in the hands of few people. Then the third point, they supported the women's suffragette movement also, means they were in favor of women's right to vote. Now moving to the third classification of society, that was Conservatives were different from the liberals and radicals. They didn't want to. Conservatives जो है उनकी विचारधाराएं हमेशा से radicals और liberals के against हुआ करती थी। हमने ऑलरेडी पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में कंजर्वेटिव पीपल कौन होते थे, वो पीपल होते थे जो किंग के ही फैमिली को बिलोंग करते थे। तो जाहिर सी बात है वो ऐसे ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे जो ट्रेडिशनली सालों से उनकी कंट्रीज में चली आ रही है, मतलब कि डायनेस्टी और किंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट ये सारी थिंकिंग उनकी कब तक थी, 18th सेंचुरी तक ही थी। 19th सेंचुरी आते आते उन्हें ये एहसास हो गया कि कंट्री को पुराने तरीके से एकदम नहीं चलाया जा सकता। जनरेशन न्यू है और वो कुछ ना कुछ चेंजेस की डिमांड करती है, तो हमें भी कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर हम अपना मोनार्की चाहते हैं कि वो कंट्री में बना रहे, अगर हम चाहते हैं कि हमारी डायनेस्टी को जो है वो राज में या सत्ता में बनी रहे। बट वो चाहते थे जो प्रोसेस आ रहा है चेंजेस का, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस हो, बहुत ही धीमे धीमे प्रोसेस हो रहा हो, जिससे उनको रूल करने का, उनके फैमिली को रूल करने का पूरा मौका मिले। Let's move to the 1.2 topic of the chapter, that is the next topic of the chapter after the introductory part, that is industrial society and social change. जैसा कि नाम में आप लोग देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में क्या क्या चेंजेस आया। 19th सेंचुरी से जो है अब कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डेवलप करना स्टार्ट हो चुके थे। कई सारी इंडस्ट्रीज जो पहले हैंडलूम पे डिपेंडेंट थी अब वो कन्वर्ट होने लगी थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ में। और इस इंडस्ट्रीज़ के एस्टैब्लिशमेंट से कैसी सोसाइटीज़ डेवलप हुई इंडस्ट्री के आसपास, और इससे जो लोकल कम्युनिटीज़ थी उनके लाइफ पे क्या चेंजेस आया, क्या सोशल चेंज आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो डेवलप हो रहा था उसने बहुत सारे चेंजेस लेकर आए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बिल्डिंग सेटअप होने लगी, रेलवेज़ एक्सपेंड करने लगे ताकि चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जा सके। न्यू सिटीज़ डेवलप होने लगी और वहाँ पे काम करने के लिए वुमेन, मैन और बच्चे गांव से माइग्रेट करने लगे, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करने लगे। जो ये पीपल माइग्रेट करके काम करने आ रहे थे फैक्ट्रीज़ में, उनकी कंडीशन बहुत ही अच्छी नहीं हुआ करती थी। उन्हें लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम कराया जाता था और कोई भी अच्छा वेजेस और एट्रैक्टिव वेज ऑफर नहीं दिया जाता था, मतलब कि बहुत ही कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाता था।
अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन होता जा रहा था, कब? जबकि डिमांड नहीं होता था इंडस्ट्रीज़ का। हाउसिंग, सैनिटेशन, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो मेजरली प्रॉब्लम हुआ करती थी टाउन एरियाज़ में। लिबरल्स और रेडिकल्स पीपल जो थे उन्होंने वो हालांकि जैसे कि चाहते थे लोगों की भलाई के बारे में, तो वो कंटिन्यूसली इस एफर्ट में लगे हुए थे कि कैसे जो कॉमन जनता है उनका जो लिविंग कंडीशन वगैरह पुअर होती जा रही है इन इंडस्ट्रियल एरिया में, उसे अपलिफ्ट किया जाए, उनको एक बेटर लिविंग प्रोवाइड की जाए, तभी कंट्री भी डेवलप कर सकेगी। क्योंकि कंट्री की ऑब्वियसली सबसे सबसे पुअर सेक्शन अगर हैप्पी रहेगा तो कंट्री में डेवलपमेंट होगा, और इसी तरीके से कोई भी इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव करेगी। वर्कर्स में जहाँ पे कोई अनफॉर्च्यून सिचुएशन आती थी, जब उन्हें प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो प्रोटेस्ट करते थे। तो इस प्रोटेस्ट में उनका साथ कौन देता था? लिबरल्स और रेडिकल्स उनका साथ देते थे। और इस लिबरल्स और रेडिकल्स में से जो बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स होते थे जो इन वर्कर्स को काम पे लगाए रहते थे, वो भी इन लोगों को सपोर्ट करते थे। मतलब फैक्ट्री ओनर्स अपने वर्कर्स को सपोर्ट किया करती थी। पर इन वर्कर्स को कौन सपोर्ट नहीं करता था? कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्कर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी। इसलिए ज़्यादातर जो फैक्ट्री वर्कर्स हुआ करते थे वो किन के साथ रहते थे? वो रेडिकल्स के साथ रहते थे, लिबरल लोगों के साथ रहते थे, और नेशनलिस्ट लोगों के साथ रहते थे, रेवोल्यूशनरीज के साथ रहते थे, मतलब कि जो उनकी हक की लड़ाई लड़ा करते थे। बट जैसा कि हमें पता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रशिया में अभी भी कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रूल कर रहा था कि जो इंडस्ट्रियल ओनर्स हुआ करते थे वो बिल्कुल भी अपनी कंट्री के फैक्ट्री वर्कर को सपोर्ट नहीं करते थे। तो इसलिए इन कंट्रीज़ में, कौन कौन सी कंट्री में? फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया में, इन चारों कंट्रीज़ में ईयर 1815 में ग्रैंड प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ। और यहाँ के जितने भी वर्कर्स थे वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से मोनार्क जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो किंग है वहाँ की, उसको हटा दिया जाए। इसलिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी किसके सपोर्ट में आते थे? वो रेवोल्यूशनरीज और नेशनलिस्ट के सपोर्ट में आते थे। एक नया नेशन डेवलप करना चाहते थे जहाँ पे उनके सारे हकों की बात की जाए। और हमें पता है 1815 में गुसेपी मैज़िनी, जो कि एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने बहुत कुछ किया अपने कंट्री के कॉमन जनता, लेबरर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के डेवलपमेंट के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम हीज ओन कंट्री इटली, एंड देन हीज आइडियाज़ वेयर फॉलोड एवरीवेयर ओवर द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया. His writings, his work were being appreciated. Dear student, this much is all about today's lecture. Do go through the topic in your NCERT book. If you have any doubt, listen to the lecture again. Still, if your doubts are not resolved, you can ask the doubt very frankly in the comment section below. I assure you that your all the doubts will be resolved. Now, the next topic की सोशलिज्म के इम्पोर्टेंस के बारे में, सोशलिज्म का मीनिंग क्या था, सोशलिज्म का एक्सपेक्ट क्या था, सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया, इन सब के बारे में हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे ऑफ चैप्टर 2. Learners, keep studying, home, stay safe, practice social distancing. Don't forget to like, share and subscribe your own channel Study Journey with Soumya Ma'am.